السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کوئی سی محنت کر کے گھر بیٹھے رزق حلال کمانا چاہتے ہیں کہ نہ دھوکہ ہو، نہ جھوٹ اور نہ حرام، اور یہ وہ طریقے ہوں گے جو 100% ریئل ہیں، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ انہی 22 طریقوں میں چھپے ہیں وہ راز جو آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ 22 طریقوں میں سے کوئی نہ کوئی طریقے آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ 22 طریقوں میں سے سب سے پہلا طریقہ جو ہے ایفلیٹ مارکیٹنگ ہے۔ ایفلیٹ مارکیٹنگ کے بارے میں ویڈیو بنا چکا ہوں، تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ۔ آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ آن لائن پلیٹ فارم وغیرہ کے ایفلیٹ پروگرام جوائن کر کے آپ ان کی پبلکسٹی کریں، آپ ان کی مارکیٹنگ کریں، اور مارکیٹنگ پہ آپ کو 10 سے 20% تک جو ہے وہ کمیشن ملتا ہے، جو کہ بالکل جائز اور حلال طریقہ ہے۔ فری لانسنگ۔ فری لانسنگ کیا ہے؟ اصل میں اپنی ڈیجیٹل سروسز جو ہے وہ اس کو بیچنا ہے، اور اس ڈیجیٹل جو اسکلز ہیں وہ آپ یوٹیوب سے اور مختلف فری اور پیڈ کورس کے ذریعے اسکلز سیکھیں، ان کو بہتر بنائیں، اور پھر آپ اپ ورک پر یا فائور پر یا اس طرح کی دیگر ویب سائٹ پر جا کر اپنی سروسز دیں اور ڈالروں میں ہی پیسے کمائیں، اور یہ بالکل حلال طریقہ ہے۔ آن لائن سروے فیڈ بیک فارمز، جی کیا ہے یہ؟ اصل میں دنیا بھر کی جو مختلف کمپنیاں ہوتی ہیں انہیں فیڈ بیک چاہیے ہوتا ہے، انہیں مشورے چاہیے ہوتے ہیں، تو جو لوگ جو ہے انہیں اچھے مشورے دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں ان کو گفٹ کارڈ اور کیش رقم بھی دیتے ہیں۔ گفٹ کارڈ میں بھی ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ رقم ہوتی ہے۔ اچھا، یہ کام آسان بھی ہے اور بہت زیادہ بھی ہے، لیکن پاکستان میں رہ کر اگر اس کو کرنا چاہتے ہیں زیادہ بڑے پیمانے پر تو پھر وی پی این استعمال کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ زیادہ تر کمپنیاں جو ہے پاکستان کے باہر کی ہوتی ہیں، جو اس طرح کے فیڈ بیک دینے پر جو ہے وہ رقم وغیرہ دیتی ہیں، اور رقم بھی آپ جو ہے نا بآسانی بینک ٹرانسفر کے ذریعے، پیونیر اکاؤنٹ وغیرہ کے ذریعے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل پروڈکٹ بنائیں۔ ڈیجیٹل پروڈکٹ بنائیں اور ڈیجیٹل پروڈکٹ بنانے کے بعد ان کو سیل کریں۔ اب یہ ڈیجیٹل پروڈکٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں، وہ اسٹیکرز ہوتے ہیں، اور چارٹ وغیرہ ہوتے ہیں، کیلنڈر وغیرہ ہوتے ہیں، یعنی یہ جو ویڈیو میں استعمال ہوتے ہیں، یا مختلف طرح سے جو ہے وہ بینرز وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ بنائیں آپ، اور بنانے کے بعد جو ہے ان کو مختلف ویب سائٹ پر آپ بیچ سکتے ہیں۔ ویب سائٹ وہی PNG ٹری ہے، اور اس کے علاوہ پوبو ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بھی بہت ساری اس طرح کی ویب سائٹ ہیں۔ اگر ڈیٹیلڈ ویڈیو اس پر میں بناؤں گا تو انشاءاللہ میں اس میں بتاؤں گا۔ وائس اوور، اگر آپ کو اللہ پاک نے اچھی آواز سے نوازا ہے تو اس آواز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اردو، سندھی، عربی، انگلش، وائس اوور کا کام کریں اور اس کی پبلکسٹی کریں، اور پھر لوگ آپ سے وائس اوور آپ کی آواز خریدیں گے، آپ کی جو ہے وائس جو ہے وہ سیل ہوگی، اور اس پر آپ کو انکم آئے گی۔ یعنی آپ نے صرف جو ہے ویڈیو یا آڈیو وائس اوور دینا ہے، اور اس کے بعد اس کے بدلے میں آپ کو حلال طریقے سے پیسے مل سکتے ہیں۔ ای بک لکھنا۔ اب آپ ظاہر سی بات ہے اگر دینی معلومات رکھتے ہیں یا دنیاوی معلومات رکھتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ ای بک لکھیے، یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے آپ سوشل میڈیا وغیرہ کے بارے میں اور دیگر جو ضروری تھے دنیا کی جو ہے وہ ضروری موضوعات ہیں، جائز موضوعات ہیں، ان پر آپ ای بک لکھیے، اور اس ای بک کو ایک بار لکھ کر بار بار سیل کیجیے۔ اس کے لیے آپ کو پلیٹ فارم کی جو ضرورت پڑے گی، جن پلیٹ فارم پر وہ سیل ہو سکتی ہیں۔ اچھا، لکھنے کے پلیٹ فارم AI ٹول وغیرہ آپ استعمال کر کے اس کتاب کو آپ لکھ سکتے ہیں، اور جو ہے ایکسل وغیرہ کے ذریعے آپ اس کتاب کو لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ بیچنے کے لیے جو ہے کوبو وغیرہ اور PNG ٹری اور وغیرہ اس طرح کی جو ہے ویب سائٹ پر آپ جا کر انہیں سیل کر۔ ویڈیو ایڈیٹنگ۔ ویڈیو ایڈیٹنگ میں آپ نے جائز طریقے سے جو ویڈیو ایڈیٹنگ ہوتی ہے، جائز طریقے، میوزک نہ ہو، عورت نہ ہو، ٹھیک ہے، اور کوئی ناجائز طریقہ نہ ہو، وہ جو جس کی آپ ویڈیو کی ایڈیٹنگ کر رہے ہیں وہ ویڈیو ناجائز نہ ہو، ٹھیک ہے، اس ویڈیو کے اندر جو ہے چیزیں ہیں جو وہ ناجائز نہ ہو، تو بالکل اس کی ایڈیٹنگ جائز ہو جاتی ہے۔ اسلامی ویڈیوز، اسلامی بلاگرز بھی موجود ہیں، اسلامی لوگ بھی جو ہے وہ ہمارے اسکالرز وغیرہ بھی جو ہے وہ ویڈیو بنوا رہے ہیں، ان کی ایڈیٹنگ کا کام کیا جا سکتا ہے، اور اس پر جو ہے وہ اچھی ارننگ حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ کوئی بھی ناجائز طریقہ اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر وہ رزق حلال والا معاملہ ختم ہو جائے۔ ویڈیو ایڈیٹنگ میں آپ کیپ کٹ، ان شاٹ وغیرہ کو استعمال کریں فی الحال، لیکن جب آپ جو ہے وہ ارننگ اچھی ہو جائے، آپ کی مارکیٹنگ آپ کو لوگ جاننے لگے، تو آپ اس کو اپ گریڈ کر کے بڑے پلیٹ فارمز پر بھی
आप वीडियो एडिटिंग कर सकेंगे। ऑनलाइन टीचिंग में आप अपनी जो महारत है, आपकी तालीमी महारत है, चाहे दुनियावी उलूम में हो या दीनी उलूम में है, उनको आप ऑनलाइन टीचिंग के तौर पर आप इसको व्हाट्सएप, ज़ूम और इस तरह की दीगर तरीकों से आप जो है वो ऑनलाइन क्लासेस लेकर आप जो है वो टीचिंग करके आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, फीस चार्ज कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग बेसिकली ये है कि कंपनियों को, ब्लॉगर्स को, मुख्तलिफ लोगों को, वेबसाइट रन करने वाले लोगों को आप जो है मज़ामीन लिख कर दे सकते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। जिन मौज़ूआत पर आपको महारत है उनके हिसाब से आप जो है वो मौजू लिखें, और सिर्फ लिखने पर आप जो है वो इस पर आपको जिसके हालात अल्लाह की तरफ से इंशाल्लाह मिलेगा। सोशल मीडिया मैनेजर, यानी आप जो है सोशल मीडिया में महारत रखते हैं, जाहिर सी बात है फेसबुक पर या यूट्यूब पर या मुख्तलिफ जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आपकी गिरफ्त है, आप जो है महारत रखते हैं, तो आप जो है उस अपनी महारत को, अपनी उस स्किल को बेहतर बनाते हुए आप जो है दूसरों के फेसबुक पेज, उनकी जो है वो वेबसाइट वगैरह और उनके अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट को रन करते रहें, और उस पर आपको वो एज ए मैनेजर के तौर पर सैलरी देते हैं पर मंथ, और अच्छी सैलरी मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी इस जॉब की डिमांड मौजूद है, तो ये भी रिस्क हलाल का एक बेहतरीन जरिया है। थंबनेल डिज़ाइनिंग, ये बिल्कुल ही आसान है, पूरी बहुत मेहनत के बाद ये स्किल आप सीख जाते हैं, और कैनवा से आप जो है सादा से थंबनेल डिज़ाइन करें, और डिज़ाइन करने के बाद यूट्यूबर्स वगैरह को आप सेल करें, तो इसके ये भी जो है वो एक पार्ट टाइम और आसान जो है वो तरीका है रिस्क हलाल कमाने का। इसमें भी जाहिर सी बात है जायज़ नाजायज़ का ख्याल रखा जाएगा, औरत वगैरह की नुमाइश ना हो। बहरहाल थंबनेल पर जो है वो कोई नाजायज़ चीज़ ना हो, तो ये बिल्कुल जायज़ है थंबनेल। ट्रांसक्रिप्शन जॉब्स, ये क्या है? ये है कि आपको एक ऑडियो दी जाती है या आपको एक वीडियो दी जाती है, उस ऑडियो या वीडियो को आपने बदलना होता है तहरीर में, टेक्स्ट में, उसको आपने लिखना होता है। वो लिखने के आपको जो है वो पैसे दिए जाते हैं, और ये आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल हलाल है, और इसके पैसे लेना भी जाहिर सी बात है हलाल है। इस्लामी ब्लॉग्स बनाएं, और एडसन, गूगल एडसन के जरिए जो है आप अर्निंग कर सकते हैं, कमाई कर सकते हैं, रिस्क हलाल की तरह बिल्कुल जो है वो आप कमा सकते हैं। कैनवा पर डिज़ाइनिंग करके उसे बेचना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैनवा पर बिल्कुल आसान है, और कैनवा पर आप जो है ये जो डिज़ाइनिंग करेंगे, तरीके जो अपनाएंगे, ये आपके बिल्कुल जो है वो हलाल होंगे, और इसके अलावा आप एआई टूल के ज़रिए भी ये काम कर सकते हैं, और इसके ज़रिए भी आप रिस्क हलाल कमा सकते हैं। कोई भी दीनी या दुनियावी किताबें जो होती हैं, का डीपली होती हैं, मुश्किल होती हैं, उनको आसान करके, उनका खुलासा बयान करके, और जो है आप वीडियो के ज़रिए, आप जो है वो ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए उनको समझाकर, ऑनलाइन जो है वो उन पर ई बुक लिखकर, जिस तरह भी है उसको यानी आसान करके लोगों को बताएं, और इस तरह भी आप जो है वो हलाल रिस्क कमा सकते हैं, फीस के तौर पर आप जो है चार्ज कर सकते हैं। इसी से मिलता जुलता नोट्स या साफ साफ खुलासा, यानी तालीमी मवाद को आसान और सादा अंदाज में पीडीएफ में बनाकर बेचना, पीडीएफ में बनाना है और उसको बेचना, नोट्स वगैरह बनाना है, जैसे कि हमारे जो तालीमी इदारे होते हैं वहाँ पर भी ज़रूरत होती है, और मुख्तलिफ मौज़ूआत अपनी महारत के मुताबिक, जाहिर सी बात है आप डॉक्टर हैं तो उस हिसाब से लिखेंगे, आप इंजीनियर हैं उस हिसाब से लिखेंगे, आप आलिम हैं तो आप उस हिसाब से लिखेंगे। बहरहाल ये है कि किसी भी मुश्किल किताब को, किसी भी मुश्किल मज़मून को आसान करके उसको पीडीएफ में बनाकर और उसको आप बेच सकते हैं, और इससे भी आप जो है रिस्क हलाल के से आसानी से जो है वो कमा सकते हैं। प्रिंट ऑन डिमांड क्या है? इसमें क्या होता है, आपने इस्लामी अक़वाल को या पुरानी आयात को या अहादीस को आपने मुख्तलिफ जो है खूबसूरत डिज़ाइन में लिखना होता है, और उसको लिखने के बाद वो सेल होते हैं। बाकायदा इसके लिए वेबसाइट मौजूद हैं, जैसे कि रेड बबल जो है, वहाँ पर आप जाकर इनको सेल कर सकते हैं और अच्छी कमाई अलग तरीके से कर सकते हैं। इनको बनाने के लिए, सीखने के लिए थोड़ी इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा है, वरना कैनवा पर आप फ्री सीख सकते हैं, फ्री में इसको आप बनाना, तैयार करना सीख सकते हैं। अब जो 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये 6 तरीके ऐसे हैं कि जो बिल्कुल ही मतलब जो है जिसको कह सकते हैं, जिनको मैंने कहा कि छुपे हुए हैं इन तरीकों में वो राज कि जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, और बिल्कुल आसान भी हैं, और जो है इसको मतलब इनमें से अक्सर तरीके मैंने खुद भी इस्तेमाल किए हैं, और उससे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने
कमाया भी है, आइंदा भी इंशाल्लाह मैं रिज़्क़ हलाल कमाता रहूँगा आपकी दुआओं से। तो ये तवज्जो से सुनिएगा आप, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा सुनिएगा। वीडियो में इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल कोई भी तरीका ऐसा हो सकता है जो आपके लिए जो है कारआमद साबित हो सकता है। 17वां तरीका, यानी अपनी महारत को, अपनी जो आपकी तालीमी काबिलियत है या आपके पास कोई हुनर है, उसको आप शो ऑफ करें। उसको आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर, मुख्तलिफ जो है प्लेटफार्म पर लेकर आएँ और उसको उसके ज़रिए ऑडियंस जमा करें। जब आपकी फील्ड के मुताबिक ऑडियंस जमा होंगे, आपके पास मिलियंस में ऑडियंस होंगे, और ये ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। अगर आप कहेंगे तो इस पर डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊँगा। ये मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी-सी मेहनत है, ज़ाहिर-सी बात है, सब्र और अल्लाह पर भरोसे के साथ ये बिल्कुल मुमकिन है। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपसे कंपनियां जो है, मुख्तलिफ कंपनियां अपने प्रोडक्ट के रिव्यू के लिए राब्ता करती हैं, एडवर्टाइज के लिए राब्ता करती हैं, और उसमें आपके पास बड़े पैमाने पर रिज़्क़ हलाल की ऑप्शन मौजूद होते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। 18वां तरीका है ऑनलाइन वर्कशॉप्स और ऑनलाइन क्लासेस। इसमें भी यही महारत और तालीमी काबिलियत जो भी है, उसको आप ऑनलाइन क्लासेस के जरिए, ऑनलाइन वर्कशॉप के जरिए जो है वो शो ऑफ करें, लोगों को बताएं, लोगों को सिखाएं। इंशाल्लाह अनकरीब ये जरिया भी आपके लिए एक बेहतरीन रिज़्क़ हलाल का जरिया साबित होगा। 19वां जो तरीका है, इस्लामी वीडियो एडिटिंग और इस्लामी ग्राफिक्स डिजाइनिंग। इस्लामी यानी आपने इस्लाम की कह, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद है, और ये वाहिद मज़हब इस्लाम है कि जिसके मानने वाले पूरी दुनिया में मौजूद है। और ज़ाहिर सी बात है, इस्लामी वीडियो भी बनती होगी, इस्लामी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की भी ज़रूरत पड़ती होगी। तो लिहाजा आपको इस हवाले से जो है वो काम करने की ज़रूरत है कि आप इस्लामी वीडियो एडिटिंग करें या इस्लामी ग्राफिक डिज़ाइनिंग करें, और इसको मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पर आप शो ऑफ कर दें। वहाँ पर आप जाकर रजिस्टर्ड हो जाएं और जो है इसकी पब्लिसिटी करें, इसकी जो है मार्केटिंग करें। इस तरह आप देखेंगे कि कुछ दिनों में आपका ये काम बहुत अच्छे अंदाज से हो सकेगा। ये भी जो है इन शॉर्ट और जो है कैपकट और कैनवा की मदद से ही मुमकिन है। 20वां तरीका जो मैंने खुद भी इस्तेमाल किया वो है OLX पर प्रोडक्ट्स बेचना। अपनी प्रोडक्ट्स को या किसी दूसरे की प्रोडक्ट को OLX पर लगाएं। कम इन्वेस्टमेंट में आप जो है ये काम स्टार्ट कर सकते हैं, और जो है वहाँ से आप इसको सेल करके आप पैसे कमा सकते हैं। 21वां तरीका यह है कि लोगों को उनकी मतलूबा मालूमात, उनकी मतलूबा चीज़ें, उनकी मतलूबा वेबसाइट, उनके मतलूबा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उनके मतलूबा लोग, उनके मतलूबा प्रोडक्ट तलाश करके दें, और इस पर आप जो है वो चार्जेस ले सकते हैं। 22वां और सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो है ऑनलाइन शॉप बनाएं। ऑनलाइन शॉप पर जाकर गए, आप जो ऑनलाइन शॉप बनाएंगे, इस पर आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट को सेल करें, अपने प्रोडक्ट सेल करें या दूसरों के प्रोडक्ट सेल करें, और उस पर आप जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। मतलब शुरू में आप ऐसा कर सकते हैं कि दूसरे की दुकान से मुनासिब पैसों में वो चीज़ खरीदें, और मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पर और आपकी वो जो ऑनलाइन शॉप होगी उस पर उसे सेल करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना एक बेहतरीन स्टोर बना सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन हलाल तरीके से काम करना चाहते हैं, घर बैठे काम करना चाहते हैं, बगैर धोखे के, बगैर रिस्क हराम के, बगैर जो है वो किसी फ्रॉड के, बगैर सूद के, बगैर जुए के, तो थोड़ी सी मेहनत करें और कम से कम एक तरीका आज से शुरू करें। और अगर कोई भी आपको वजाहत दरकार हो या इसके हवाले से कोई डिटेल्ड वीडियो दरकार हो, तो मेरे कमेंट सेशन में जाकर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस पर रिस्पॉन्स भी आपको मिलेगा। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो है वो दीगर लोग भी रिज़्क़ हलाल की तरफ आ सकें। मुझे जो है पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए रिज़्क़ हलाल के तरीके बताने, तकरीबन मेजॉरिटी यही चाहती है कि लीगल तरीके से, हलाल तरीके से हमें जो है रिज़्क़ हलाल नसीब हो। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।